In the world of GST, every financial year comes with two things: new set of forms and whole new set of confusions. And this year it is GSTR 9 and 9C that's been given a full makeover: new tables, new logics, new linkages, and same old panic among the taxpayers. But why don't worry, we have this topic with us today and we are going to clarify all minute points with us. And to have this clarification, we have with us CA Keshav Gupta sir. Welcome again, sir. It's been really pleasure to have you with us again. Thank you so much, Nandi, for calling me back on the text table with CA Nandal. And you have rightly said that confusions in the world of GST are, they are not the same way they were supposed to be resolved. But yes, वो continuously grow ही हो रहे हैं. And government comes up with a new thing every time. So yes, 9 and 9C the दो forms अपने होते हैं. They have been modified, especially 9, and the purpose is that कि थोड़ा सा जो पिछले टाइम के ऊपर confusions होते थे in those forms उनको clarify करा जाए. So predominantly, to some extent, it is a good move by the government in order to modify such forms. And secondly, government is also planning कि थोड़ा सा ease हो rather than difficulties on form को भरने में. So they have come up with new set of FAQs also on in October and then again November. So, and again in December also. So those things are very important, and I think it is going to be a fruitful discussion on all those things today. Definitely, sir. So, sir, before we go on to the amendments, I want to understand कि हम एक बार बेसिक से बात करें, and I want to understand कि ये GST 9 and 9C होता क्या है, 9 क्या है, 9C क्या है, दोनों डिफरेंट कैसे हैं, and एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो एक टैक्स पेयर को, रजिस्टर्ड पर्सन को होनी चाहिए. Yes, that is very much required. So basically, मतलब GST का अगर returns structure अपन समझे, so there is a monthly return which is filed, which is GSTR 1. Then there are monthly returns in form GSTR 3B. One is the detail of outward supplies, and 3B is a consolidation. So it is outward minus input net tax payable. So payment of taxes has to be made through GSTR 3B. Claim of ITC has to be made through GSTR 3B. And one जो होता है वो basically a statement है which is providing the information of all the outward supplies, invoice to invoice level details. Now the thing which is happening here is कि उन सब informations में technically बहुत सारी चीज़ें missing है. 1 के अंदर हम जानते हैं कि amendment possible है, but you cannot revise a return. Similarly, 3B को revise करा ही नहीं जा सकता है. So to cover all the situations, once the books of accounts of the taxpayer are finalized, there is a need कि एक annual return form file हो जिसके अंदर वो जितना भी अपना books of accounts के according उसकी जो उसका audited books of accounts के according जो उसका working हुई है या whatever the taxes payable or whatever is the balance amount of ITC to reverse or anything, वो उसको capture कर सके. So all the details come into that form, which is annual return, and it has to be filed by the end of December of the next financial year. So April अभी 24-25 चल रहा है. I think we are just 15 days away from the due date of 24-25, and probably this is the way the forms are structured कि उसमें आपको आपकी outward की पूरी details है, which is segregated into the B2B, B2C, exports, zero rated, सब तरह से उसका segregation है. Then there's a table which talks about all the ITCs segregated into different levels. Then there's a table which talks about the reversals of ITC. Then there's a table which talks about the net tax payable. Then आपको supplementary information देने की भी बात है उसके अंदर. For example, आपने कितने refund sanction हुए, या suppose आपका deemed export कितना है, या फिर job work के through आप कितना कुछ काम हुआ है, या फिर major sale approval basis कितना है. And then finally, HS invoice outward supplies and inward supplies की information. So if we talk about the form, it captures everything which is actually done by the taxpayer and which is required by the tax authorities. So tax authorities जो होती हैं उन्हें इन्हीं सब चीज़ों पे parameters पे आपका assessment करना होता है. And this form serves as a very crucial form because it is in a way providing the picture to the to the authorities in one single go. So that is why this form is very important. So 9C is it is a form which is supposed to be filed along with GSTR 9. So as per section GST Act के जो sections हैं उनके according आपको 9C में extra में file करना पड़ता है section 44 के according for a specific category of taxpayers, and that 9C form is more of a reconciliation statement. So GST 9 is more of a data of books of accounts. 3B1 आप फाइल कर चुके हो, एक 9 आपने फाइल करने की बात आई है. अब 9C में आपकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपकी ऑडिट हुई है उनसे आपका जो GST 9 है उनके फिगर्स का रिकन्सिलेशन होता है. सो प्रीडोमिनेंटली योर टर्नओवर फिगर्स, योर टैक्स पेबल फिगर्स एंड देन योर ITC फिगर्स. सो दिस इज हाउ द फॉर्म इज डिजाइन. ओके सर. सो सर दिस इज़ द बेसिक. अब अगर मैं अमेंडमेंट्स की आगे बात करूँ तो
अभी एक बात चल रही है कि अगर आपने 1 and 3B हर मंथ की फाइल नहीं करी है तो आप 9 and 9C फाइल नहीं कर सकते हो। और ये कह रही है रिसेंट आए, तो क्या पहले हम 1 and 3B बिना फाइल करे भी 9 9C यानी एनुअल रिटर्न फाइल कर सकते थे? सो बेसिकली द पॉइंट वाज कि द लॉ इज़ नॉट वेरी मच क्लियर कि आपको 9 फाइल करने से पहले सारे 3B और 1 फाइल होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। सो टेक्निकली portal was allowing you to file 9 also, otherwise also, even if you have not filed GST 1 or 3 of a particular financial year of a particular month. So now the portal as well as the law has been designed in a way that till the time you file all the monthly returns, you cannot be given the option to file GST, and which is very logical also. I mean, that is not possible कि आपने अगर monthly तो compliance करानी है और आप सीधे उसका annual के अंदर compliance करें. So that is why they are saying कि आप अपना जो monthly compliance है, which is in the form of 3B1, उसका पूरा करिए and then 9 file करिए. Adding to your point that 9 is not mandatory for all the taxpayers. 9 is supposed to be filed only in the situation when your aggregate annual turnover, which is to be computed on a PAN number basis, it exceeds 2 crore rupees. And 9C is to be supposed to be filed in a situation where that aggregate annual turnover exceeds 5 crore rupees. So 2 crore से 5 crore तक वाले जो लोग हैं, they are supposed to file only 9. 5 crore plus वालों को 9 के साथ में 9C भी फाइल करना पड़ेगा, और 2 crore से जो नीचे वाले उन्हें अभी exemption दे रखी है. Earlier it was given through notifications time to time, but now law has a specific amendment which says that it is not supposed to be filed by the persons with an aggregate annual turnover of 2 crore rupees. Plus one more thing, that there's a lot of confusion कि भाई मान लीजिए मेरा सपोज एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर है, पैन बेसिस पे 2 करोड़ से प्लस हो रहा है, 5 करोड़ से प्लस हो रहा है, बट आई हैव फ्यू GSTINs जिसके अंदर मेरा नील टर्नओवर है. सो वेदर आई शुड हैव फाइल्ड द GST 99C फॉर दैट नील GSTN also. So the answer to the question is yes, because आपका applicability जो है वो aggregate annual turnover पे. Once you qualify that criteria, all the other GSTNs जिसके अंदर आपको उस distinct person के पास जितने भी GSTNs हैं उन सब में आपको फाइलिंग करनी पड़ेगी 9C except casual taxable persons. So I'm sure आपको पता होगा कई लोग बिजनेस के लिए एग्जीबिशंस में जाते हैं, कैजुअल टैक्सेबल नंबर्स लेते हैं. सो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन्स के जो GST नंबर्स हैं उनको छोड़ देंगे, बाकी सबका 9 और 9C फाइल होगा अगर एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर पे वो लिमिट एप्लीकेबल हो रही है तो. और कुछ कैटेगरीज ने शायद हटा रखे, जैसे नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन्स हैं या कैजुअल टैक्सेबल ने आपको बताई दिया, जैसे ISD है, उनको 9 फाइल करने की आवश्यकता नहीं है. कुछ जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जिनकी CAG ऑडिट होती है उन्हें 9 9C फाइल करने की दोनों की रिक्वायरमेंट नहीं है. सो दिस इज प्राइमरी बैकग्राउंड हाउ 9 and 9C आर ऑपरेटिंग सिंस लास्ट 8 years of GST. And now the deadlines are also very taken care by department, that they are not in a mood कि भाई ठीक है extend करे बार. So last 2-3 years से the deadline has been kept intact. 31st December of every financial year is a deadline for the preceding financial year. ओके सर, अभी रिसेंट अमेंडमेंट्स में एक टेबल इंट्रोड्यूस हुई, टेबल 8A, विच टॉक्स अबाउट द इनवर्ट सप्लाईज. उसमें लोग ऐसा कह रहे हैं कि हमारी पुरानी ITC लैप्स हो रही है. सो आई नीड द क्लैरिटी फ्रॉम यू कि ये 8A की वजह से क्या रजिस्टर्ड पर्सन को कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है एट दिस पॉइंट? So if we talk about table 8A earlier was based on GST 2A. So the law changed in January 2022 and said that now ITC has to be taken based on ITC which is appearing in 2A. There was a subsequent amendment which said कि ठीक है अब 2B जो होता है वो फ्रीज हो जाएगा और उसके बेसिस पे आप इनपुट ले सकते हैं. So talking about financial year 24-25, ITC was supposed to be taken only when it was appearing in GST 2B. Okay. Now the government realized कि जो 8A है वो टेबल जो है डेटा तो फेच कर रही है ऑटो पॉपुलेट होके, बट दैट डेटा हैज हैविंग figures which pertain to other financial years also. So there was a apple to apple comparison नहीं हो पा रहा था. So to come up with that, they have issued a clarification in a way कि अब जो 8A होगी उसके अंदर डॉक्यूमेंट डेट इंपॉर्टेंट हो जाएगी. सो फॉर एग्जाम्पल मेरी 2A में वो कभी भी दिख रहा होगा, बट अगर मैं डॉक्यूमेंट डेट जो है उस पर्टिकुलर सप्लायर ने जो इशू करा इनवॉइस, वो डॉक्यूमेंट डेट अगर फाइनेंशियल ईयर 24-25 के अंदर कहीं भी फॉल कर रही है, सो दैट ऑल डेटा विल गो इनटू 8A. ओके, वन थिंग. सेकेंडली, हमें पता है कि GST के अंदर आप लास्ट ईयर के अमेंडमेंट्स को 30 नवंबर तक कर सकते हैं सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर के. सो 30 नवंबर तक भी जो आपने अमेंडमेंट्स कर दिए हैं, दोज ऑल अगेन गो इनटू टेबल 8A बिकॉज द डॉक्यूमेंट डेट पर्टेन्स टू फाइनेंशियल ईयर 24-25. थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग कि 8A के अंदर आपके जो GST 1 और 1A या मान लीजिए GST 1A के थ्रू जो 2A के अंदर अमेंडमेंट, 2B के अंदर अमेंडमेंट, वो सारे कंसिडर होने के बाद आ रहे हैं. सो राइट नाउ इट इज गिविंग अ पोजीशन कि आपकी 2B में एग्जैक्टली कितनी इनपुट टैक्स क्रेडिट आ रही थी जो आप ले सकते थे
with respect to financial 24-25, and it is very important because there's a substantial condition under section 16 to AA which says कि आप input 2B के अलावा नहीं ले सकते हैं. So this is how table 8 is designed now. ओके सर, अभी जैसे मैंडेटरी भी कर दिया IMS को, पहले वो वॉलंटरी था व्हेन इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बैक इन October 24. सो जो वो वॉलंटरी इंट्रोडक्शन किया गया था, क्या उसका भी कुछ इम्पैक्ट है ओवर द टेबल 8A? So I'll answer your question in two parts. So first of all, IMS अभी भी अगर आप उसका थोड़ा सा लीगल एनालिसिस करेंगे, IMS is still not mandatory. So we can say IMS is still optional because ऐसा नहीं है कि IMS को फॉलो करना mandatory, and in fact government has given some clarifications also over that कि IMS is not at all mandatory. If you are following IMS, it is a good governance principle because you are accepting, rejecting or keeping it pending. But you are not following IMS, still your 2B will be generated. So that ways IMS का 2B के अंदर इफेक्ट डायरेक्टली नहीं आता है because ultimately if you are following the pattern entire year, then your 2B will be generated accordingly. So IMS is a step prior to IMS is a step prior to 2B. Prior to generation of 2B, there's IMS. Even if you're not complying with the IMS principles, your 2B will still be generated. Right. So that ways it is not going to affect that much into your 2B. Ultimately, जो भी document date है, अगर आपको financial 24-25 का है, IMS में आपने उसको accept, reject, pending जो भी करा हो, still it will appear into your table 8A. This is how they are coming up with. And I think FAQ में specific question भी इसको लेकर के कि भाई IMS मैंने फॉलो नहीं करा है, मान लीजिए IMS के अंदर मेरे कुछ और चल रहा है, so will that have an impact because it was not mandatory earlier. So that way they have clarified also that it is not going to affect your table 8 figures. ओके Yeah. सर, टैक्स पेयर्स एक बात और बोल रहे हैं कि एक्सेल 8A एंड ऑनलाइन 8A उस दोनों में डिफरेंस है. Yes. सो वो किस वजह से, क्या रीजंस है, एंड एक्सेल में क्यों अलग है एंड व्हाई इट इज डिफरेंट इन द ऑनलाइन वन? Yes. So yes. I mean जो 8A आपका ऑनलाइन फिगर दिख रहा है, that 8A versus that 8A which you download from the from the portal only, from the very same portal in Excel, there's a difference. So reasons of difference have been clarified in the FAQs also, and such FAQ says कि okay, आपके Excel शीट के अंदर B2B, B2BA या क्रेडिट नोट इन सब का इम्पैक्ट हो सकता है. So one reason is this, and then जो टेबल 8A आपकी ऑनलाइन जनरेट हो रही है वो उन सबको फैक्टर इन करते हुए हो रही है. सो 8A एक्सेल डाउनलोड हो रहा है, वो मल्टीपल टेबल्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है. दे आर सेइंग कि वो एक वन ऑफ द रीजन हो सकता है कि आपकी डिफरेंस आए. ठीक है, इसके अलावा कई बार ऐसा भी होता है कि जो 8A डाउनलोड हो रहा है उसमें डॉक्यूमेंट डेट से अलावा आपकी जो पर्टिकुलर मंथ वाइज डिटेल है उस मंथ में मान लीजिए कि और भी चीज़ें आ रही हैं तो वो भी इंक्लूड हो जाती है. सो दैट वेज दे हैव ट्राइड टू क्लैरिफाई कि आप 8A एक्सेल पे बिलीव ना करें ज़्यादा, डिफरेंस होंगे. सो दे हैव एडमिटेड इट दैट देयर विल बी डिफरेंस, बट you should be focusing more on the figure which is appearing online because that online figure is final as per them. It has considered all the amendments, all the changes which have been made by supplier by 30th November of this particular year. Okay. So that way I think 8A online is the relevant figure with which we should be comparing the ITCs. ओके सर, अगर हम ITC में ही आगे बात करें तो एक टेबल 6 से 1B है. Yes. व्हाट इट इंक्लूड्स इन द डेटा? Yes. So this is something important. I think this is something which has created a lot of fuss in this particular financial year. And I think 8 से ज़्यादा important है भी टेबल 6A1 का फिगर हो गया कि टेबल 6A1 में क्या आएगा. So the plain language of 6A1 is very clear. It says कि जो भी आपकी ITC previous financial year की है वो माइनस कर दीजिए. So I'll tell you the background how it happened कि मेरी जो टेबल 6A होती थी ओरिजिनल टेबल 6A, उसमें GSTR की टेबल 4B का, 3B का, 4B का टोटल आता था. ना 4B अगर आप 3B में जाएंगे बैक पे थोड़ा सा तो 4B एक कॉन्सोलिडेटेड टेबल चल रहा है. बिल्कुल इज नॉट एट ऑल गिविंग यू कि मैं किस फाइनेंशियल ईयर कितने इनपुट मैंने क्लेम करा. टैक्स अथॉरिटी जब असेसमेंट कर रही थी, दे वर आस्किंग, डिपार्टमेंट वाज आस्किंग कि भाई आपने इतना इनपुट का उनको ब्रेकअप दीजिए, और ब्रेकअप में फिर उनका बहुत प्रॉब्लम था. एसएससी कहता है कि सर पिछले साल के इनपुट को इस साल क्लेम करा. सो देयर वर लॉट ऑफ कन्फ्यूजन्स एंड दिस वन पर्टिकुलर रीजन दैट मेरे पिछले साल की इनपुट मैंने इस साल क्लेम करी है, इट वॉज कमिंग अप अगैन एंड अगैन. सो पिछले सालों की जो 9 थी उसके फिगर को फाइनल करने के बाद भी एसएससीज को एक सेपरेट रिकन्सिलेशंस देने पड़ते थे फॉर द पर्पज ऑफ justifying your ITC claim to the tax authorities, which was a kind of headache. So this particular 6A1 has came up with the idea कि जो आपका ITC claim पिछले सालों का है और जो आप इस साल अपनी टेबल 4B ऑफ GSTR 3B के अंदर क्लेम कर चुके हो, उस पर्टिकुलर
क्रेडिट को थ्रेशोल्ड पे ही लेस कर दिया जाएगा, और जो रेजिडुअल फिगर बचेगा यानी कि 6A2 जो डिफरेंशियल फिगर बचेगा मतलब विच इज 6A minus 6A1, so that 6A2 will be the actual ITC which is pertaining to current financial year. Financial year. उस पे ही आगे फिर सारे नीचे बाइफिकेशंस होंगे, सेग्रीगेशंस होंगे, and this is how the form has been redesigned, revamped. So very generally speaking, 6A1 is nothing but it is simply putting the figures of financial year 23, 24 or any preceding year जिसका आपने ITC 24, 25 के अंदर क्लेम कर लिया है, उसको आप थ्रेशोल्ड पे ही 6A1 के अंदर डालिए, लेस होने के बाद जो नेट फिगर बचेगा दैट विल बी द ITC विच पर्टेन्स टू द करंट फाइनेंशियल ईयर, और उसी पे आगे फिर सारा सेग्रीगेशन हमको पढ़ना है. ऑल्दो दे हैव मेंशन दैट उसके अंदर आपको कुछ ITC नहीं लेनी है. सो फॉर एग्जांपल दे हैव सेड कि अगर आपने कोई रिक्लेम करा है ऑन अकाउंट ऑफ रूल 37 एंड 37A, Okay. so 37 and 37A के अकाउंट पर रिक्लेम है, दैट ITC इज नॉट सपोज्ड टू बी इंक्लूडेड इन 6A1. So for that they have come up with a understanding also in the FAQs itself that Rule 37. So just to tell the background, Rule 37 of the GST law says that in case you have not made the payment to the supplier in 180 days, you have to reverse the ITC. बिल्कुल. Similarly, Rule 37A says कि supposedly if you have not made the, your supplier has not filed a 3B return, in that case you have to reverse the ITC. Now the reason of putting these two particular ITCs as separate ITC other than Rule 37 and 37A, the reason is that कि जो 37 और 37A होता है इसके ऊपर सेक्शन 16(4) की टाइम लिमिट लगती ही नहीं है. Mm-hmm. So the government understands the press release gives an understanding that since it is not a claim which is barred by the limitations of time under section 16(4), in that case उस इनपुट को हम उसी साल का क्लेम मानेंगे जिसमें आपने एग्जैक्टली उनको रिक्लेम करा है. सो फॉर एग्जांपल अगर आपके केस में ऐसा है कि मान लीजिए आपने पिछले साल इनपुट जो था वो टेबल 4B के अंदर आपका टोटल इनपुट से फॉर एग्जांपल 120 रुपीज़ था, उसमें आपको पता है कि मेरे पिछले साल के इनपुट भी 20 रुपीज़ है, बट मुझे ये भी पता है कि इस 20 रुपीज़ के अंदर ऑन अकाउंट ऑफ रूल 37 में रिक्लेम कर रहा है सपोज 5 रुपीज़. सो द लॉ इज सेइंग कि 6A1 के अंदर आपको सिर्फ 15 रुपीज़ डालना है, 20 minus 5, बिकॉज अदर देन रूल 37 एंड 37A में कितना बच रहा है ITC पिछले साल का 15 रुपये. तो मुझे 15 रुपये डालना है, तो ऊपर थ्रेशोल्ड मतलब मेरा जो टेबल 6A है दैट इज 120 रुपीज़, नीचे माइनस में जो मैं 6A1 में डालूंगा 15 रुपये, और जो बैलेंस 105 रुपये होंगे वो मेरा करंट ईयर के क्लेम में जाएगा. अब जो मेरे 5 रुपये थे वो रेल 37A के थे, बट दे वर पर्टेनिंग टू प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर. स्टिल आई एम नॉट सपोज टू रिड्यूस इट इन 6A1. I have to report it as 6H, which is amount of credit reclaimed, which is earlier reversed and now reclaimed. So that will come into rule table 6H, और वहाँ पे वो 5 रुपीज़ का फिगर रिपोर्ट होगा. And the reason is that 37 और 37A की इनपुट का फाइनल एलिजिबिलिटी आपको जब होता है जब आपने उसका पूरी कंडीशंस को पूरा कर दिया. So they are saying that it is a fresh claim for the current financial year. All the transaction might have happened in the previous financial year, but they are considering for the purpose of 9 it is a claim for the current financial year. So this is how they have tried to segregate कि आपको 6A1 के अंदर प्रीवियस ईयर का इनपुट डालना है अदर देन रूल 37 और 37A की वजह से जो आपने इनपुट लिया है उसको छोड़ के. सर अगर मैं 8A या 6A1 की बात करूं, बिफोर फाइलिंग द एनुअल रिटर्न अगर सप्लायर अपने इनवॉइस में कुछ भी चेंजेस करता है ओवर द पोर्टल इन एनी अमाउंट एनी टैक्स वैल्यू, सो क्या वो ऑटो अपडेट हो जाएगा हमारे 8A में हमारे 6A1 टेबल में? यस डेफिनेटली. देखो 6A1 जो है वो तो मेरा खुद का डिक्लेरेशन है, सो 6A1 ऑटोमेटिक अपडेट नहीं होगा, बट योर टेबल 8A विल बी ऑटोमेटिकली अपडेटेड, क्योंकि मेरा जो सप्लायर है वो लास्ट अमेंडमेंट कर सकता है 30 नवंबर. राइट. अगर उसने अमेंडमेंट करके मेरे पिछले साल के इनवॉइस को छेड़ दिया होगा, चेंज कर दिया होगा, सो दैट चेंज विल ऑटोमेटिकली कम इन टू टेबल 8 विद इट विल इनकॉर्पोरेट दैट विल टेक एन इफेक्ट इन टेबल 8A. और जो 8A का ऑनलाइन फिगर अपीयर हो रहा है वो अपडेटेड फिगर है बिकॉज द इनवॉइस हैज बीन अमेंडेड बाय द सप्लायर that ways. And 6A1 जहाँ तक है, so 6A1 will not automatically auto-populate. It is a figure which has to be, put in by the taxpayer, because वो figure जो है हमारा पिछले फाइनेंशियल ईयर के इनपुट का फिगर है, तो मुझे अलग से उसको डालना पड़ेगा. ओके सर, अगर हमने करंट फाइनेंशियल ईयर में कुछ ITC क्लेम नहीं किया तो वो भी कहीं हमारे एनुअल रिटर्न के अंदर शो होगा दैट दिस वैल्यू इज नॉट बीइंग क्लेम्ड एज ऑफ नाउ इन दिस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर रिटर्न? So yes, there is an option because see, the current framework of GST law allows you to take input tax credit
up to 30th November of next financial year. So technically speaking, it is the return which is supposed to be filed in November. So which is October का 3B. October का 3B आप 20 नवंबर तक फाइल करोगे, उसमें आप लास्ट इनपुट अपना क्लेम कर सकते हैं. Now अगर आपने पिछले साल का आपका टोटल ITC है और उसको आपने कुछ तो उसी साल क्लेम कर लिया, कुछ आपको पता है कि मैंने अगले साल क्लेम करा, बट अगले साल आप कितना क्लेम कर सकते हो, दैट इज अप टू 30th नवंबर ओनली. तो जो आपने उसको अगले साल क्लेम करा है, दैट फ्रेश क्लेम विल अपीयर इन टेबल 8C विच टॉक्स अबाउट कि आपने पिछले साल का इनपुट था उसमें से कितना इनपुट आपने अगले साल क्लेम करा, दैट इज टेबल 8C. और उसी कॉरस्पॉन्डिंग आपको रिपोर्टिंग टेबल 13 में भी करना है विच सेज कि आपने पिछले साल के इनपुट अगले साल कितना क्लेम करा है. सो 13 विल नॉट हैव इम्पैक्ट इन कैलकुलेशन, बट 8C विल हैव इम्पैक्ट इन कैलकुलेशन. सो if you just try to connect it between 8A, 8B और 8C में क्या linkage है. So 8A is saying कि मेरा टोटल इनपुट 2B के हिसाब से कितना है, और वो 2B के अंदर सारा इनपुट हुआ आएगा जो डॉक्यूमेंट डेट 24-25 के हैं. अब मेरा टोटल इनपुट आ रहा है 2B में, सपोज करिए से फॉर एग्जाम्पल 5 लाख रुपीज. 6B का फिगर 8B के अंदर आता है. 6B जो वो फिगर था जितना मैंने क्लेम कर लिया करंट फाइनेंशियल ईयर में, वो रहा 8B के अंदर ऑटो पॉपुलेट हो, और मैंने उसको इनपुट कर वहाँ पे वो फिगर 6B का फिगर उठ के आ गया कि इतनी इनपुट मैंने क्लेम करी है इस साल. तो थर्ड रो इज टेबल 8C विच सेज कि इसमें से आपने कितनी इनपुट जो 2 में आ रही थी और जितनी आपने इस तरह की उनके लिए. अब अगर बैलेंस बच रहा है तो आपने हो सकता है उसमें तीन आपने चॉइसेस रखे हो. सो चॉइस नंबर 1 दैट you might have taken that ITC in next financial year. So that is table 8C up to specified period. 8D और 8E जो हैं, सो दे सेज कि भाई ठीक है, जो इनपुट है वो आपको अवेलेबल तो थी 2B में सॉरी, बट दैट इज नॉट अवेलेबल, सो दैट इज नॉट क्लेम, सो दैट इज अदरवाइज लैप्स. या फिर वो इनपुट अवेलेबल थी बट दैट वाज इनएलिजिबल, सो दैट वाज इट इज अगेन लैप्स. सो वो आप जब ITC एलिजिबल बट नॉट अवेल्ड या फिर ITC अवेलेबल बट नॉट एलिजिबल जब फिगर्स डालेंगे, सो दे आर ऑटोमेटिकली लैप्सिंग बिकॉज आप उसको कहीं भी लेके नहीं जा रहे हो. सो दिस इज हाउ दे हैव ट्राइड टू put in the table 8A with respect to input which is appearing in 2B. ओके सर, अगर हम ITC में अगर आगे बात करें, टेबल 8H जो कि बात करता है हमारे इम्पोर्ट्स की. सो मैं इम्पोर्ट्स में दोनों ही बातें जानना चाहती हूँ, फॉर द इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एज वेल एज फॉर इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज. इसमें किस तरह रिपोर्टिंग होगी, हाउ द डेटा विल बी फीडेड, बिकॉज जितनी मेरी नॉलेज है इम्पोर्ट ऑफ गुड्स कस्टम से हमारा डिफाइन होता है. सो उसके बारे में आप बताइए. So the thing here is now कि एक इसके रिस्पेक्ट में 8H1 इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है. So earlier there were two rows only. The one row was saying ITC paid on IGST paid on import of goods. So IGST actually आपने पे कितना करा है. अब क्या होता है कि मान लीजिए हम हर साल IGST पे तो करें इम्पोर्ट ऑफ गुड्स पर, जरूरी नहीं उसकी इनपुट में उसी साल ले जाओ. होता है कि मैं उसकी इनपुट कि बाकी कंडीशंस को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, तो इन दैट केस मैंने बिल ऑफ एंट्री फाइल कर दिया मार्च में फॉर एग्जांपल, बट वो गुड्स रिसीव नहीं हुए मार्च तक, तो मैं उसके इनपुट को उस साल नहीं ले सकता हूँ. जस्ट पर लॉ वो आई कैन क्लेम ITC ओनली व्हेन आई हैव रिसीव्ड द गुड्स. तो होगा कि मान लीजिए मेरा ITC पेड ऑन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स से फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपीज़, बट उसमें से मैंने इनपुट उसी साल कितना क्लेम करा, हो सकता है 80,000 की 20,000 के हिसाब से मैं कंडीशन पूरी नहीं कर पा रहा हूँ. सो नाउ दे हैव गिवन 2 लेवल डिक्लेरेशन फॉर दैट. वन इज कि आपने IGST पेड ऑन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स कितना है, दैट इज टेबल 8H. उसके बाद वो बोलते हैं कि उसमें से आपने कितना उसी फाइनेंशियल के अंदर क्लेम कर लिया, और उसके बाद एक और H1 है विच सेज कि उसमें उसके अलावा जो था जो बच गया वो आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल में क्लेम कराया नहीं था. सो इन अ वे आपने टोटल जितना IGST पेड ऑन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स कराया उसका आप सेग्रीगेशन कर रहे हो कि भाई इतना तो मैंने उसी साल क्लेम कर लिया और इतना मैंने उसको नेक्स्ट ईयर में लेके गया इनपुट को, और वो कॉरेस्पॉन्डिंग डिटेल आपका टेबल 13 में भी आएगा. नाउ द फिगर विच यू आर पुटिंग इन 8H1 विच इज कि आपने इतने इनपुट को नेक्स्ट ईयर में क्लेम करा इम्पोर्ट ऑफ गुड्स पे, वो आपका जो टेबल 6E के अंदर कॉलम डिटेल जाती है विथ रिगार्ड टू कि मेरे इम्पोर्ट ऑफ गुड्स पे कितना इनपुट टैक्स रेट पे ले रहा हूँ, वहाँ वो रिपोर्ट नहीं होगा क्योंकि वो क्लेम आपने करा ही नहीं है. वो क्लेम आप खुद ही बोल रहे हो कि मैं अगले साल करूँगा. सो वहाँ पे हमें ध्यान रखना कि टेबल 6 के अंदर जो रेस्पेक्टिव डिटेल्स यहाँ पे हम डाल रहे हैं कि इम्पोर्ट ऑफ गुड्स पर आपने कितने इनपुट टैक्स रेट क्लेम करी है, वहाँ पे उसको नहीं डालना है. सेकेंडली विथ रिगार्ड टू क्वेश्चन की जो टेबल 8 है वो सर्विसेज की भी इनपुट को कैप्चर करेगा. सो द आंसर इज नो, बिकॉज सर्विसेज का जो इनपुट होता है IGST का जो पेमेंट मैकेनिज्म होता है दैट इज स्लाइटली डिफरेंट, इट इज नॉट गवर्न बाय कस्टम्स. सो इन दैट वेज 8 टेबल जो है इट इज कवरिंग ओनली IGST विच इज पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स, इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, और जो इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज का है वो टेबल 6 के अंदर ही सारा
सेग्रीगेशन है, वहीं पे सारा क्लासिफिकेशन है, वहीं पे आपको उसको डिक्लेयर करना है। इनपुट सर्विसेज पे आपने कितना इंक्लूडिंग एसएस जो आप सर्विस इंपोर्ट कर रहे हो, उस पर आपने रिवर्स चार्ज पे कितना जीएसटी पे करा है. सो दैट विल गो इनटू टेबल 6 ओनली, दैट विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टेबल 8 एनीवे, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज. ओके सर, अगर सर हम आगे बात करें, मैंने आईटीसी, लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैंने आईटीसी क्लेम किया था इन द फाइनेंशियल ईयर 24-25, लेकिन बाद में बिकॉज ऑफ सर्कमस्टांसेस मुझे लगा कि इसे रिवर्स करना होगा मुझे, एंड देन आई रीक्लेम इट. सो इस प्रोसीजर में कैसे रिपोर्टिंग होगी मेरी रिटर्न में? Yes. So, very important question because अभी जो डिपार्टमेंट है या जो गवर्नमेंट मशीनरी है, उनने बेसिकली 3B फाइल करने का एक प्रोसेस डिज़ाइन करा था. सो द प्रोसेस वॉज कि आप जब 3B फाइल कर रहे हैं तो पहले आपको सारा आईटीसी क्लेम करना है टेबल 4 के अंदर. 4A जो टेबल है उसमें आपको सारा आईटीसी 2B का सेग्रीगेट करना है कि भाई ये ऐसे ऐसे आईटीसी है, ये मैं पूरा पे क्लेम दिखाऊंगा. देन दे वर गिवन 2 ऑप्शंस कि भाई आप उसको रिवर्स कर रहे हो 4B के अंदर. सो देयर कैन बी 2 टाइप ऑफ रिवर्सल्स. वन इज ये मुझे लगता है कि ये परमानेंट रिवर्सिबल है, सेक्शन 17(5) रूल 42-42 एनीथिंग, तो मैंने उसको परमानेंटली रिवर्स कर दिया. एक थर्ड ऑप्शन बचता है, एक सेकंड ऑप्शन ये होता है कि मान लीजिए अभी तो मैं इसको रिवर्स कर रहा हूँ बट मैं बाद में इसको ले सकता हूँ. सो दैट इज 4B2 विद आपका टेम्पररी रिवर्सल, जो उसको आम भाषा में बोलचाल की भाषा में परमानेंट रिवर्सल, टेम्पररी रिवर्सल, 2 तरह के रिवर्सल रिपोर्ट होता है. सो लॉ अंडरस्टैंड्स कि जो आप परमानेंट रिवर्स करोगे वो तो आपका रिवर्स हो गया, वो तो आप कभी क्लेम नहीं करोगे आउट ऑफ 2B. आउट ऑफ 2B जो आप टेम्पररी रिवर्स कर रहे हो वो आप खुद बोल रहे हो कि मैं इसको वापस कभी ले सकता हूँ, और वापस लेने के उसके रीजंस भी है. मान लीजिए आज मैं किसी इनपुट की कंडीशन को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, या मान लीजिए रूल 37 क्या 37A ही है वन ऑफ द थिंग, या मान लीजिए सपोज करिए मुझे पता है कि मेरे पास इनवॉइस रिसीव नहीं हुआ, गुड्स रिसीव नहीं हुआ, तो मैं उसको टेम्पररी रिवर्स करूँगा, तो उसको परमानेंट रिवर्स नहीं करूँगा. सो द करंट फ्रेमवर्क ऑफ 3B इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड बिकॉज इट सेज कि आपने जो टोटल इनपुट लिया है 2B का, आप उसको पूरे को पहले ऊपर सेग्रीगेट कर, पहले उसको सेग्रीगेट करो टेबल 4A में, एंड 4B you will make a understanding whether it is a temporary, whether something has to be reversed permanently or whether something has to be reversed temporarily. So whatever you are reversing temporarily, you are making a declaration that you can claim it again back. ठीक है? The procedure says that once you are claiming it back, मान लीजिए मैंने अप्रैल में उसको लिया, इनपुट क्लेम करा, और अप्रैल में मैं उसको सपोज करूँ एक बार टेम्पररी रिवर्स कर दिया बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू फुलफिल द कंडीशंस ऑफ लॉ, एनी अदर कंडीशन. सो मैं जब उस इनपुट को मई जून या जब मैं उसको लॉ की सारी कंडीशंस को पूरा कर पा रहा हूँ, तो मैं उसको मई जून में जब रीक्लेम कर रहा हूँ, सो द प्रोसीजर वाज दैट आई हैव टू ऐड इट बैक इन टेबल 4A, ठीक है, एंड देन आई हैव टू रिपोर्ट इन टेबल 4C डिक्लेयरिंग कि भाई मैंने 4A के अंदर इतने रुपए ऐड कर दिए हैं जो मैंने पहले टेम्पररी रिवर्स करे थे. सो अगर आप इसका इफेक्ट समझोगे तो इफेक्ट ये हो रहा है कि टेबल 4A जिसका फिगर टेबल 6A ऑफ GST 9 के अंदर जा रहा है, उसके अंदर वो इनपुट 2 बार ऑलरेडी एडेड है. एक बार तो मैंने ओरिजिनल क्लेम लिया था, राइट, और एक बार मैंने उसको रीक्लेम करा. ठीक है, इफेक्ट इज कि मेरे को इनपुट मिलनी थी एक ही बार, बट इनपुट कैसे चलेगी मेरी 4A के अंदर 2 बार. ठीक है, सो इफ आई विल स्प्लिट इनटू नाउ 3 पार्ट्स. सो वन इज अ ओरिजिनल क्लेम, सेकंड इज ओरिजिनल रिवर्सल, एंड थर्ड इज रीक्लेम. ठीक है, तो अब जो फ्रेमवर्क है वो ये कह रहा है कि आपका जो टेबल 6A है उसके अंदर आपका सपोजिटली फॉर एग्जांपल मैंने सब काम 24-25 फाइनेंशियल में कराया. मैंने एक बार क्लेम करा ओरिजिनल क्लेम, देन आई रिवर्स्ड इट एंड देन आई रीक्लेम्ड इट. एवरीथिंग हैपेंड इन 24-25 ओनली. उस सिचुएशन में क्या करना है कि टेबल 6B जो है जिसमें मुझे ओरिजिनल क्लेम दिखाना है. सो फॉर एग्जाम्पल मेरे केस में ओरिजिनल क्लेम मेरा था 100 रुपीज़ का, तो मुझे 100 रुपीज़ का ओरिजिनल क्लेम दिखाना है, और चूंकि मैंने उसको एक बार रिवर्स कर दिया था तो मुझे उसको टेबल 7 में जाकर रिवर्स करना है. सो द इफेक्ट इज 6B 100 रुपीज़ क्लेम, टेबल 7 100 रुपीज़ रिवर्स, इफेक्ट इज 0. But since I have reclaimed it, so there's a table 6H also, which is categorically saying amount of ITC reverse and reclaim. So table 7 फिर से 100 रुपये चल जाएंगे, तो अल्टीमेटली नेट में मेरी इनपुट जो है 100 रुपये हो जाएगी. ठीक है, ये सिचुएशन होगी जब आपका तीनों चीज़ें एक ही साल के अंदर हुई है. नाउ 3B इतना ईजी फॉर्म है नहीं, इट इज़ ऑलवेज कॉम्प्लिकेटेड. सो देयर कैन बी अ सिचुएशन जब आपने रिवर्स मतलब जो ओरिजिनल क्लेम है वो पिछले साल कराओ, रिवर्सल भी पिछले साल कर दिया हो 23-24 के अंदर, और रीक्लेम आप कर रहे हो इस साल. इस साल के 3B के अंदर क्या मुझे दिख रहा है कि वो जो टेबल 4 है मेरी उसमें वो बढ़ा हुआ है फिगर. बट एज द लॉ एज द फॉर्म इज नाउ डिजाइन वे कि ठीक है, अगर आपका पिछले साल का कोई क्लेम इस साल की 3B के अंदर आ रहा है तो उसको आप 6A1 पे थ्रेशोल्ड पे माइनस कर दोगे. तो मुझे
पिछले साल का अगर मैंने कोई रिक्लेम करा है, जो मैंने पहले अवेल करा था, फ्रेश रिवर्स करा था, और फाइनली मैंने उसको रिक्लेम करा है इस साल के 3B के अंदर 24-25 के अंदर, उसे मुझे सिंपली 6A1 में से माइनस कर देना है ताकि मेरा कंपैरिजन के लिए सही फिगर आ जाए इस साल को। थर्ड सिचुएशन कैन बी कि मैंने IT से सपोज करो क्लेम करा इस साल, रिवर्स भी कर दिया 24-25 में, रिक्लेम करा है 25-26 में अप टू नवंबर पीरियड। सो इन दैट केस व्हाट विल हैपन कि मेरा जो ओरिजिनल क्लेम है वो जाएगा टेबल 6 के अंदर, 6B के अंदर। रिवर्सल जो है दैट विल बी रिपोर्टेड इनटू टेबल 7। बट रिक्लेम चूंकि मेरा इस साल हुआ है उसको मैं इस बार की GST 9 के अंदर रिपोर्ट नहीं करूँगा एक्सेप्ट टेबल 13, बिकॉज टेबल 13 इज सेइंग कि आपने पिछले साल के इनपुट को अगले साल क्लेम कराया गया, तो मुझे टेबल 13 के अंदर उसको रिपोर्ट करना है। बाकी मुझे इफेक्टिवली उसको वापस से रिक्लेम इस साल डाल लेनी है। अगले साल जब मैं GSTR 9 भरूंगा तो मुझे उसको रिक्लेम के फिगर को या तो 6B1 में से माइनस करना पड़ेगा अगर वो अदर देन अकाउंट ऑफ रूल 37 है, या फिर मैं उसको 6H के अंदर डालूंगा इफ द रिवर्सल वाज ऑन अकाउंट ऑफ रूल 37 है। सो दिस इज लिटिल टेक्निकल बट यस दिस इज हाउ दे हैव ट्राइड टू पुट इन कि ठीक है आपका जो भी एडजस्टमेंट है वो प्रॉपर्ली सेग्रीगेट होकर सही टेबल पे चल जाए एंड दी इफेक्ट इज गिवन। सो दिस इज वन थिंग अबाउट रिवर्सल रिक्लेम। अच्छा, कुछ जगहों पे क्या हुआ है कि ऐसा भी हुआ है कि मान लीजिए कि मैंने पिछले साल 23-24 के अंदर ITC इनएलिजिबल ITC ऑलरेडी रिवर्स कर दी थी, बट अगेन ड्यू टू देयर वाज सर्टेन डिपार्टमेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो कि आपको उसको एक बार वापस क्लेम करके फिर से रिवर्स करना चाहिए, बिकॉज कुछ ना कुछ जो गवर्नमेंट फंड्स का प्रॉब्लम था, बिकॉज द एलोकेशन ऑफ फंड्स वाज नॉट डन प्रॉपर्ली, बिकॉज उसने उसको इनएलिजिबल ITC को प्रॉपर्ली शो नहीं करा था पोर्टल पे अपने 3B के अंदर। सो उसके अंदर अब उन्होंने बोला असेसी ने क्या किया, मान लीजिए पहले ऑलरेडी 23-24 के अंदर ITC रिवर्स पर थी, अब इस साल उसने फिर से उसको क्लेम करके फिर से उसको रिवर्स कर दी। सो अगर इस साल मैंने उसको क्लेम करा है 24-25 के अंदर, वो 23-24 की ITC है, तो उसमें 6A1 में से माइनस करना है, बट रिवर्स भी मैंने इसी साल करा उसको वापस, तो टेक्निकली मुझे उसका टेबल 7 में फिर से दिखाना चाहिए। बट टेबल 7 को एकदम क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि टेबल 7 के अंदर आप वही रिवर्सल दिखाओगे जो पर्टेनिंग टू फाइनेंशियल 24-25 है। अगर कोई भी रिवर्सल पर्टेनिंग टू 23-24 है वो टेबल 7 में नहीं आएगा। सो एनी रिवर्सल विच इज पर्टेनिंग टू फाइनेंशियल 24-25 ओनली विल अपीयर इन टेबल 7J, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। होता क्या है कि हमने मान लीजिए 23-24 का रिवर्सल 24-25 में करा है, अब वो मेरे रिवर्सल के अंदर रिपोर्ट हो रहा है 3B के अंदर, बट मुझे टेबल 7 में उसको लेके नहीं जाना है। कहीं पर ऐसा गलती हुई कि वो टेबल 7 में ऑटो पॉपुलेट हो रहा है तो मुझको हटाना पड़ेगा वहाँ से, बिकॉज टेबल 7 इज स्पेसिफिकली सेइंग दैट ओनली फॉर द ITC विच इज पर्टेनिंग टू फाइनेंशियल 24-25 उसको आप रिवर्स कर रहे हो बाय एनी मॉडल, बी इट 3B, BRD, RC03, कैसे आप रिवर्स करोगे तो उसको आपको सिर्फ वहाँ पे रिपोर्ट करना है। सो दिस इज द टोटल इफेक्ट ऑफ हाउ टू रिपोर्ट द रिवर्सल, रिक्लेम एंड अदर थिंग्स। One important thing I would like to clearly put in here is that कि जो मेरे पास रिवर्सल, रिक्लेम, मतलब ओरिजिनल क्लेम, रिवर्सल एंड रिक्लेम की पोजीशन में क्या मेरी टेबल 8C के अंदर कुछ आएगा क्या? सो मेनी टाइम दिस क्वेश्चन इज कम अप कि मान लीजिए मेरी टेबल 8C है, वो मुझे बोल रहे हैं कि इनपुट ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर जो मैं अगले साल स्पेसिफाइड पेड करूँ, तो मैं बोल सकता हूँ सर देखिए मैंने इसको रिवर्सल करा था, ओरिजिनल क्लेम करा था कि मैं उसको रिवर्स कर दिया था, अब मैं रिक्लेम तो अगले साल 24-25 में कर रहा हूँ, तो मैं क्या उस फिगर को 8C में डालूँ? तो आप उस फिगर को नहीं डालेंगे। टेबल 8C को लेकर के क्लियर इंस्ट्रक्शंस है, ओनली द फ्रेश क्लेम, फ्रेश ओरिजिनल क्लेम विच हैज बीन मेड इन द फाइनेंशियल ईयर 25-26 फॉर द ITC व्हिच वाज पर्टेनिंग टू फाइनेंशियल 24-25 अप टू स्पेसिफाइड पीरियड आपका आपने क्लेम करा है, तो फ्रेश क्लेम ही सिर्फ 8C के अंदर आएगा। 8C के अंदर रिवर्सल, रिक्लेम वाली जो कोई एडजस्टमेंट्स हम कर रहे हैं वो करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज इट इज सिंपली सेइंग कि आपका 8A में फिगर इतना आ रहा है, वो एक बार का फ्रेश क्लेम है, उसमें से आपने फ्रेश क्लेम 6B के अंदर डाला है, कितना मैंने इस साल 3B में करा, अब बचा हुआ फ्रेश क्लेम जो मैं अगले साल कर रहा हूँ मुझे डालना, तो ये रिवर्सल, रिक्लेम वाला एडजस्टमेंट हमको टेबल 8C में नहीं करना है। सो दिस इज वेरी मच क्लियर इन द GST 9 फॉर्म नाउ। ओके सर, अभी तक हम नॉर्मल टैक्स पेयर्स की बात कर रहे थे। इफ आई मूव टू स्पेसिफिक रजिस्टर्ड पर्सन लाइक इको, दैट इज ई कॉमर्स ऑपरेटर विच कम्स अंडर फ्रॉम सेक्शन 9(5) ऑफ दिस GST एक्ट, सो उनके लिए भी कोई स्पेसिफिक टेबल इंट्रोड्यूस हुई है इसमें? Yes, so for the e-commerce operators, there is a specific row. So I'll put it this way कि outward का जो टेबल है मेरा, उसमें नॉर्मली कोई चेंज नहीं है। आउटवर्ड का टेबल 4 है, टेबल 5 में कोई चेंज नहीं है। सिर्फ टेबल 4G1 एक रो इंट्रोड्यूस हुई है विच सेज कि सप्लाइज बाय ई-कॉमर्स ऑपरेटर ऑन विच टैक्स हैज बीन पेड अंडर रिवर्स चार्ज अंडर सेक्शन 9(5). सो उसके लिए क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि 9(5) में अगर ई-कॉमर्स ऑपरेटर ने रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करा है तो इन दैट केस
3B फॉर्म के अंदर भी उनके लिए सेपरेट कॉलम इंसर्ट हो गया था, और 9 के अंदर भी उनके लिए सेपरेट कॉलम इंसर्ट हो गया कि उन्हें उस पर अपने फिगर्स को रिपोर्ट करना है। दैट्स इट। इसके अलावा उसमें ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए कोई चीज़ नहीं है। अच्छा सर, और स्पेसिफिकली बात करें, अभी तक हमने नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म की बात करी, आरसीएम की रिपोर्टिंग किस तरह होगी हमारे एनुअल रिटर्न्स में? हाँ, सो वन इम्पॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन इज कम अप इन आरसीएम ऑल्सो। सो होता क्या है कि हम अगर टेबल 4 की हेडिंग पढ़ेंगे, सो टेबल 4 की हेडिंग कहती है कि टेबल डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज एंड इनवर्ड सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज फॉर द फाइनेंशियल ईयर। सो समझ में ऐसा आता है कि मान लीजिए मैंने मेरी बुक्स के अंदर आरसीएम की लायबिलिटी जो थी वो सपोज बन रही थी से फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपीज़ की, और मैंने 3B के अंदर ऑलरेडी 80,000 डिस्चार्ज कर रखे थे। 20,000 मेरे जीएसटी रिव्यू के अंदर पता चला कि देव आपको 20,000 की आरसीएम की लायबिलिटी और है। तो मैं क्या कर रहा था, अभी टेबल 4 में जो आरसीएम मुझे रिपोर्ट करना होता था, इनवर्ड सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज, वहाँ पे पूरे 1 लाख दिखा रहा था, क्योंकि बुक्स के हिसाब से लायबिलिटी में डिस्क्लोज कर रहा हूँ, बाकी सारी B2B B2C की, तो बुक्स के हिसाब से आरसीएम में 1 लाख बन रहा है, मैं रिपोर्ट कर रहा था। और फिर मेरा जो टैक्स पेबल होता था वो टैक्स पेबल नीचे टेबल 7 के अंदर जा रहा था उसके अकॉर्डिंग। अभी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नहीं, अगर आपने 24-25 फाइनेंशियल ईयर का रिवर्स चार्ज और 24-25 फाइनेंशियल ईयर के ट्रांजेक्शन्स का जो रिवर्स चार्ज में टैक्स 25-26 में पे कर रहे हो, सो दिस विल बी रिपोर्टेड इन GST 9 ऑफ 25-26 ओनली. It will not be reported into table 4, which pertains to financial year 24-25 although, but since you have paid the tax in 25-26, तो 25-26 की GST 9 के अंदर ही वो रिपोर्ट होगा। और कॉरेस्पॉन्डिंग आई थिंक वो लॉजिकल भी है, बिकॉज प्रीवियसली ये थोड़ा गैप था अंडरस्टैंडिंग में कि रिवर्स चार्ज में होता है क्या है कि आप टैक्स जब पे करते हो उसका तब इनपुट के लिए एलिजिबल होते हैं। सो मैं अगर मान लीजिए टैक्स पेमेंट कर रहा हूँ 25-26 के अंदर, तो टेक्निकल इनपुट में 25-26 में उसके एलिजिबल होगा। उस पर 16/4 की डेडलाइन जो लगती है वो इस ईयर से स्टार्ट होगी, बिकॉज वंस आई पे द टैक्स देन ओनली आई इशू अ सेल्फ इनवॉइस और देन ओनली आई मे बी इशूइंग पेमेंट वाउचर, तो उसकी वहाँ से डेडलाइन स्टार्ट होगी इनपुट लेने की। दैट बिकम्स द पेमेंट डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन विच आई टेक माई इनपुट। सो अगर वो डॉक्यूमेंट जनरेट ही 25-26 में हो रहा है बिकॉज यू पेइंग टैक्स इन 25-26, तो इन दैट केस उसका जो इनपुट है वो ये 25-26 में क्लेम करो। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट नाउ टैक्स पेयर कैन गो फॉर ऑप्शन कि भाई आप उसके इनपुट को, आपको पता चल गया 24-25 का इनपुट आपने आरसीएम में नहीं पे कराया, 24-25 का आरसीएम में टैक्स पे नहीं कराया, कुछ पेंडिंग रहेगा, तो आप उसको 25-26 की GSTR 3B के अंदर डिस्क्लोज करिए, वही इनपुट लीजिए, और 9 के अंदर डिस्क्लोज ना करिए। So this clarification has come up, which is a very good clarification. It is in line with what was the actual understanding with regard to payment of tax under RCM and pay of ITC under RCM. So that way it is a very good move. And previously there were certain confusions which have been clarified by way of FAQs very clearly. So this is how there is a change in RCM reporting. ओके सर, HSN वाइज जो हमें रिपोर्टिंग करनी होती है, बी इट फॉर आउटवर्ड और इनवर्ड, उसमें भी हमारे अब कुछ चेंजेस आए हैं या फिर वो एज इट इज एज द प्रीवियसली बीइंग डन? So I think more or less it is same, because from financial year 22-23 onwards, I think there was a requirement to report HSN wise outward details. Inward HSN आज भी रिपोर्ट नहीं करना है, आउटवर्ड आपको रिपोर्ट करना है। आउटवर्ड के अंदर नियम क्लियर है कि अगर आपका 5 करोड़ प्लस टर्नओवर एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर, इन दैट केस यू हैव टू रिपोर्ट 6 डिजिट HSN लेवल, ठीक है। और 5 करोड़ से कम है तो 4 डिजिट HSN लेवल आपको रिपोर्ट करना है। और उसमें एक बस सहूलियत है कि आपका जो भी टर्नओवर का 10% से ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं HSN, आप उन्हीं को रिपोर्ट कर दीजिए, बाकी को आपको रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं। बिकॉज HSN क्या होता है कि आप मंथली टर्न्स देखोगे उसमें HSN की रिपोर्टिंग, और जब एनुअल पे उसको लेके आओगे तो थोड़ा डिफरेंस आ रहा थोड़ा सा। सो they have tried to give some leverage also, but yes, this is how they have tried to implement the HSN wise outward details. ओके Nothing for inward, and inward is still optional. ओके सर, हमने अभी तक 9 के लिए काफ़ी बात कर ली, 9C के लिए भी कुछ स्पेसिफिक अमेंडमेंट्स आए हैं, न्यू टेबल्स इंट्रोड्यूस देयर एज वेल? So well, 9C के अंदर अपन बात करें particularly, there is no such specific table which is creating a lot of impact. But yes, एक तो 9C के अंदर एक कैश पेमेंट की जो टेबल है, एनी लेट फीस और एनी एडिशनल टैक्स विच हैज टू बी पेड, सो कैश में पे होना है, वो एक टेबल मैंडेटरी कर दिया, विच सपोज टू बी फिल्ड इफ देयर इज एनी सच लायबिलिटी। सेकेंडली, जो 9C है मेरे हिसाब से उसमें चेंज कुछ नहीं होगा, बट उसमें जब 9 की रिपोर्टिंग का जो थोड़ा चेंज हुआ पैटर्न, उसकी वजह से 9C के अंदर आपका ITC का जो टेबल होता है, टेबल 12, दैट विल श्योरली रिक्वायर यू टू गिव गुड रीजंस व्हाई देयर इज अनरिकंसाइल्ड डिफरेंस। सिमिलरली अगर मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि आरसीएम की लायबिलिटी मुझे बुक्स के अकॉर्डिंग तो आरसीएम की लायबिलिटी आएगी मेरी, बट टैक्स पेबल जो होगा वो कम आएगा, बिकॉज मैंने उसको 9 में रिपोर्ट नहीं करना है। मुझे बोल दिया कि 9 में आप रिपोर्ट करोगे 25-26 के अंदर, 9 आपको 24-25 में उसको रिपोर्ट नहीं करना है, बट बुक्स में वो 24-25 में रिपोर्टेड है, ठीक है।
तो बुक्स की लाइबिलिटी में तो वो दिखेगा ऐड हुआ हुआ। मैं 9 से लाइबिलिटी जो कैरी फॉरवर्ड करके 9 से मैं लेके जा रहा हूँ ट्रांसफर हुई, उसमें फिगर दिखेगा कम, सो दिल बी ऑटोमेटिकली डिफरेंस। सो फॉर दैट डिफरेंस यू हैव टू लुक सर्टेन रीजंस। पहले शायद वो मैच हो रहा होगा, अब उसके अपन को डिफरेंस को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एंड so what I do advise in filing 9 also कि 9 और 9C भरते समय आप अपनी बुक्स को थोड़ा सेंटर कर रखिए, because books are the basis of those all the filings, and don't try to match everything. There can be reconciliation differences. Try to explain them. कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए हमारे टैक्स पे बिल की जो टेबल होती है कि इसमें उनको रेट वाइज टैक्स डिस्ट्रीब्यूट करना है, वहाँ लोग 9 का ही सेग्रीगेशन भर देते हैं, तो उसमें मिसमैच होता ही नहीं है, जबकि वो बुक्स का सेग्रीगेशन बनना है आपको। सो रीड द हेडिंग्स, रीड द लेबल्स बिफोर यू डू एनी काइंड ऑफ फाइलिंग। एवरी लेबल हैज सर्टेन इंस्ट्रक्शंस अटैच्ड टू इट। ट्राई टू उसके हिसाब से बनने की कोशिश करें। सेकेंडली FAQs आ चुके हैं, FAQs को बहुत ही थोरली स्टडी करके एंड देन यू शुड बी प्रोसीडिंग विद द फाइलिंग। और FAQs के 2 सेट आए अभी तक, आई एम श्योर को और रिक्वायरमेंट हुई तो गवर्नमेंट विल कम अप विद मोर सच FAQs आल्सो। सो दिस इज ऑल अबाउट 9C। 9C में इतना मेजर ऐसा कोई और चेंज नहीं है। सो सर, मैं आपको सुनने के बाद ये एनालाइज कर पा रही हूँ कि जो भी मेजर चेंजेस करे गए वो ITC में करे गए। दैट इज गवर्नमेंट इज मोर सेंट्रिक टू द इनवर्ड टैक्स बीइंग क्लेम्ड बाय द टैक्स पेयर। सो आप मुझे एक बेस्ट फ्लो ऑफ प्रोसेस बता सकते हो फॉर दी स्मॉल बिजनेसेस, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स, जो कि एक होता है ना, जो GST रजिस्टर्ड पर्सन या खुद ही अपने टैक्स रिटर्न फाइलिंग कर रहे हैं, एनुअल रिटर्न फाइलिंग कर रहे हैं, उनके लिए बेस्ट फ्लो ऑफ प्रोसेस जिससे वो स्ट्रीमलाइनली अपना कंप्लाइंस प्रोसीजर कंप्लीट कर सकें। वेल, सो इफ दैट इज़ द केस आई वुड से कि देखिए, सबसे पहले तो क्या है कि MSMEs या छोटे टैक्स पेयर्स के रिकन्सिलेशंस बहुत ही मिसिंग होते हैं। तो पहले तो उन्हें थोड़ा सा रिकन्सिलेशंस पे फोकस करना चाहिए, बिकॉज इफ़ योर बुक्स आर नॉट रिकन्सिल्ड विद योर वेंडर बुक्स और इफ देयर एनी सच गैप, तो प्रॉब्लम हो गई होगा। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल दे शुड ट्राई टू कीप अ करेक्ट रिकन्सिलेशन ऑफ वॉट एवर फाइलिंग्स दे आर डूइंग, वॉट एवर फाइलिंग्स दे आर डूइंग इन 1 and 3B। सेकेंडली, जहाँ तक बात है बेस्ट प्रैक्टिस की, तो स्पेसिफिकली टू टेबल 6 आई वुड से कि आपको अपना जो भी 3B में आपने ITC ली है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे, यू शुड हैव अ डिटेल वर्किंग ऑफ हाउ यू हैव टेकन दैट ITC। ओके, अगर आपका उसकी इनवॉइस वाइज वर्किंग है, तो इन दैट केस आप उस वर्किंग में ही आप निकाल पाओगे कि भाई इस साल का क्लेम कितना है और पिछले साल का क्लेम कितना है। राइट। वंस यू अराइव एट पिछले साल का क्लेम, आपको उसको 6A1 में डाल के माइनस कर देना है, करंट ईयर का क्लेम आ जाएगा। बट देयर कैन बी अ पोजीशन कि उस पिछले साल के क्लेम के अंदर जो इनपुट पर्टेनिंग टू रूल 37A है वो भी हो, बिकॉज आपने पिछले साल सपोज उसको डिसअलाउ करा था 180 डेज के चक्कर में, तो आपको पिछले साल का 9 भी रेफर करना पड़ेगा, क्योंकि दैट 9 ऑफ लास्ट ईयर विल प्ले इंपॉर्टेंट रोल। 9 ऑफ लास्ट ईयर में आपने डिक्लेयर कराया कि मैंने कितना रूल 37 में रिवर्स कराया, अब उसी रिवर्सल को तो आपने इस साल कहीं ना कहीं क्लेम करा होगा। ऐसे मान लीजिए 9 ऑफ लास्ट ईयर में डिक्लेयर करा होगा कि मैंने पिछले साल की इनपुट 24-25 में कितनी लिया, उसको भी आपने टेबल 30 में डिस्क्लोज करा होगा। टेबल 12 के अंदर रिवर्सल रिपोर्ट करे होंगे पर्टेनिंग टू प्रीवियस ईयर टेकन मेड इन नेक्स्ट ईयर। सो उन सबको भी फैक्टर इन करते हुए चलना है। वी हैव टू इंश्योर कि वो फिगर्स भी मैच हों। ऐसा नहीं हो कल को मान लीजिए कि वहाँ पे आपने 9% में कुछ भी डिक्लेयर कर देते और अब आप यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमने उतनी इनपुट तो ली नहीं है पिछले साल की। सो गवर्नमेंट विल डेफिनेटली डू ऑल दोज नंबर क्रंचिंग एंड ऑल दोज थिंग्स कि भी आपका वहाँ डिक्लेरेशन गलत है, यहाँ डिक्लेरेशन गलत है। राइट। सो दैट कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम। सो ट्राई टू कीप ऑल द 3B वर्किंग्स इन प्लेस। जो भी डिटेल वर्किंग 3B की है उनको आप सेग्रीगेट करिए कि उसमें से पहले 24-25 की जो ओनली पर्टेनिंग टू 24-25 उसको अलग निकाल दीजिए, वो समझ में आ जाएगा इसी साल का सब कुछ। देन कम टू द ITC विच इज पर्टेनिंग टू प्रीवियस ईयर्स। उस प्रीवियस ईयर की ITC को मुझे 2 भाग में डिवाइड करना है। 37 कितनी है वो अलग चल जाएगी टेबल 6H में, और जो टेबल 6B1 में जाएगी वो बच्चे कुछ ITC जाएगी। उसके अकॉर्डिंग आपको ऑटोमेटिकली नेट क्लेम फॉर दी करंट फाइनेंशियल निकल जाएगा, जो 6B के अंदर कैरी फॉरवर्ड होगा। 6B से वो पूरा नीचे ब्रेकअप होता हुआ रहा अलग अलग एज में कैसे कैसे उसका इनपुट हमको किस किस हेड में लिया। हाँ, सो टेबल 6B से लेकर के 6H तक आपको उसको प्रॉपरली सेग्रीगेट करके रिपोर्ट करना है। देन अगर हम कुछ मतलब जो पहले लेबल्स चेंज थे, कुछ टेबल्स के ITC 01, 02 के ITC इतने, वो पहले भी हुए था अभी हुए, बट ओनली इज अ चेंज ऑफ लेबल। एंड देन कमिंग टू टेबल 7 विच इज स्पेसिफिकली सेइंग कि आपको कितना ITC इस साल से पर्टेनिंग रिवर्स करना है, सिर्फ वहीं आप रिपोर्ट करें जो फाइनेंशियल 24-25 से पर्टेनिंग हो, रिवर्स थ्रू एनी मोड 3B और DRC थ्रू 3। देन यू कम टू टेबल 8। टेबल 8 में आई वुड से कि टेबल 8 में जो ऑनलाइन फिगर आ रहा है उस पर थोड़ा प्रॉपर्ली रिलाई करिए, बिकॉज दैट इज द फिगर विच इज बेस्ड अपॉन द डॉक्यूमेंट विच पर्टेनिंग 24-25। तो उसके बाद में आपकी 6B की इनपुट ऑटोमेटिकली नीचे आ रही है, तो कंपैरिजन के लिए एक सही फिगर नीचे आया, और फिर आपको दिख रहा है कि मेरी उन दोनों में डिफरेंस आया। सो आइडियली डिफरेंस शुड नॉट बी देयर। इफ डिफरेंस इज पॉजिटिव इन टेबल 8D, फाइन,
But if difference is negative, there is something which you should look back and see. So this is how I would say कि triggering points क्या क्या हो सकते हैं. और respective reporting जो भी होगी, table 8C में I have clearly told you that only fresh claims which were missed, they should be reported. ऐसा नहीं है कि रिवर्सल रिक्लेम वाला आपने जो रिक्लेम आपने अगले साल कराया 25-26 में उसको आप 8C में डाल दें, ऐसा नहीं करना. वो 13 टेबल का पार्ट होगा बट 8C का पार्ट नहीं होगा. सो येस 8C में और 13 में भी डिफरेंस आ सकते हैं. पहले ऐसा होता था कि जो 8C में रिपोर्ट होता था वो 13 में रिपोर्ट होता था, देयर वाज अ चेक पॉइंट. बट नाउ इट इज़ नॉट द केस. उस चेक पॉइंट की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसको भी एक्नॉलेज किया जा चुका है दैट देयर विल बी डिफरेंस. सो देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. सो दैट वेज आई थिंक. अच्छा, one more thing I would like to clear which has been made clarified in FAQ also, कि कुछ लोग क्या करते हैं, टेबल ऐसे चाह रहे हैं कि मतलब जो हमारी 3B की नेट ITC हमने ली है साल भर में, 4C जो अपन फिगर बोलते हैं, वो मेरा ITC फाइनली मैच कर जाए टेबल 7J से, बिकॉज टेबल 7J से इज नेट ITC अवेलेबल फॉर यूटिलाइजेशन. तो वो मैच ओनली इन सिचुएशन तब करेगा जब आपकी 3B के अंदर पिछले सालों का कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं. जैसे आपके 3B के अंदर प्रीवियस ईयर के एडजस्टमेंट्स आ गए, योर टेबल 7J इज नेवर गोइंग टू मैच विद टेबल 4C of GSTR 3B. So that is very important. जो हमें क्लियर होना चाहिए कि मैचिंग अननेसेसरी चीज़ों की मैचिंग ना करो. जो करेक्ट डेटा उसको रखो. कहीं पे भी हमारे को लग रहा है कि देयर इज समथिंग व्हिच इज मिसिंग और यू नीड टू प्रोवाइड मोर क्लैरिफिकेशंस. सो ट्राई टू कीप दोज थिंग्स इंटैक्ट बाय वे ऑफ रिकंसिलेशंस. दैट इज द ओनली बेस्ट एडवाइस. एंड देन जो MSMEs हैं उनके लिए थोड़ा सा टफ ही होता है दैट दे माइट बी अ सिचुएशन दैट दे डू नॉट हैव द वर्किंग ऑफ 3Bs एंड ऑल दोस थिंग्स. सो यस, थोड़ा सा उनको ये एक्सरसाइज करनी चाहिए. इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल दैट आप जो भी फाइल कर रहे हो उसको प्रॉपरली अपने मतलब उसका जो डेटा है दैट शुड बी प्रॉपरली टेकन केयर एंड दैट शुड बी प्रॉपरली फॉर्म बिफोर फाइलिंग द 3B एंड ऑल दोस अदर रिटर्न्स. वेल सर, आपको सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिली है. आपसे पहले मुझे खुद की रिटर्न जो मुझे फाइल करनी है ऑफ द एनुअल रिटर्न, उसमें मुझे बहुत प्रॉब्लम्स आई थी. बीइंग आई एम द CA स्टिल मुझसे नहीं हो रही थी फाइल, बट आई गॉट अ लॉट ऑफ क्लैरिटी आफ्टर हियरिंग. सो आई होप हमारे लिसनर्स को भी काफ़ी इससे क्लैरिटी मिली होगी. जो भी छोटे बिजनेसेस हैं जो खुद ही अपने कंप्लायंस वर्क को देखते हैं, दे रियली गेट्स इन सम इंसाइट्स एंड नॉलेज टू फाइल द रिटर्न सीमलेसली. So yeah, it was a very power-packed and insightful session for us. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you for inviting me on the Tax with Nandini. And I am sure कि जो भी अपन discussions कर रहे हैं, so they will be more fruitful when they're implemented practically, because these things are a little technical. Once implemented practically, there can be certain other combinations also, and all the listeners are free to ask anything whenever they want to ask. So thank you so much for inviting, and have a pleasure day. Thank you so much, sir. Thank you so much for tuning in. If you like the session, please share it, like and subscribe with all your colleagues and businesses who are going to file their annual return. And stay tuned for the next episode. Next episode will be out soon. And jaldi milte hain. Till then, stay tuned. Hey, this is CA Nandini Gupta signing off.